Hello and welcome to Geno IES. Today in this session of a small video, we'll be discussing the Khalistan issue. All of you must be going through news articles through different newspapers, whichever source you are following. I want you to have an broad understanding of this topic. Further, not only discussing this topic, I'll also tell you a technique which we use in UPSC answer writing is the pestle technique. What do we mean by pestle technique is that you try to analyze the issue in such dimensions, that is political, educational or environmental, social, technological, legal and other aspects of this particular issue are being discussed in this particular technique. Now, when we talk about Khalistan issue, we should be knowing that what is the origin of this issue, how it came to be a prime part of our foreign diplomacy when we talk about the Western nations, how it is an internal threat to India's internal security. We'll discuss all of these things in this video lecture. I'll try to make it brief. The maximum length can be around 15 to 20 minutes. I hope that all of you will bear with me and try to understand the nits and grits of this topic. Beginning with the historical context, I want you to remember the time of partition and before partition only 1947 में जब बंटवारा हुआ, इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए, उस टाइम के बाद ही और उस टाइम से पहले ही अंग्रेजों ने हमारे बीच ये सीड्स बो दिए थे, ये बीज बो दिए थे, जिससे बंटवारे के बाद इतनी ज़्यादा क्राइसिस हुई कि दोनों साइड्स आपस में दुश्मन बन गए. उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था माइग्रेशन का. पार्टीशन के बाद जितने भी लोग इस रीजन में रह रहे थे, जो पंजाब रीजन हम बोलते हैं इसको, जिसके दो हिस्से हो गए, एक वेस्टर्न पंजाब हमारा पाकिस्तान में चला गया, ईस्टर्न पंजाब हमारा इंडिया में रह गया. यहाँ पे माइग्रेशन के जो वो हॉरर्स थे, जो माइग्रेशन में क्राइम्स हुए, ठीक है, औरतों के साथ, प्रॉपर्टी के साथ, बच्चों के साथ एक दूसरे को मारा पीटा गया, काटा गया, लाशें बही, वो ही था पंजाब का मेन रीजन. वो माइग्रेशन और वो हॉरर्स ऑफ माइग्रेशन वाज द मेन रीजन दैट इट इनग्रेन्ड डीप इनटू द माइंड्स ऑफ दिस people of this region, that they are yet not forgetting what have they faced at that point of time. Further, इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में आते हैं. 1947 का टाइम खत्म हुआ, पंजाब का इंटीग्रेशन इंडिया के साथ हुआ, पंजाब एक प्रॉस्पेरस स्टेट बना. धीरे धीरे पंजाब में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए और पंजाब प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ता गया. बट वहीं पे एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आता है जिसका नाम है आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन. ये 1973 में आया था और इसमें पर्टिकुलर जो एक हाईली फोकस्ड डिमांड था इस रीजन का, वो था कि पंजाब का जो रीजन इंडिया के साथ है, इस रीजन को रीजनल ऑटोनॉमी दी जाए. रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब ये है, इन्होंने यहाँ पे बोला कि हमें इकोनॉमी, कल्चर, रिलीजन, इन सब चीज़ों में इंडियन स्टेट और इंडियन गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए. ठीक. Therefore, what they asked for was Khalistan supporters, which at that point of time, these people, the supporters of this Khalistan movement, they used this Anandpur Sahib resolution to support their claims, and therefore emerged a leader among the Sikhs whose name was Bhindranwala. ठीक है. Bhindranwala in 1980s became the face of Sikh militancy, and at that point of time the Sikh state or the Khalistan state was a reality for the supporters of Bhindranwala, which was just at the end of the tunnel which they were seeing at that point of time. उनको लगा बस ये टनल खत्म होते ही हमारा सिख स्टेट, हमारा खालिस्तान हमें मिल जाएगा. That was the epic moment of Bhindranwala's rise.
What Bhindranwale did was he introduced the techniques of Sikh militancy in this region of Punjab. Therefore, it took a violent shape, which started with the horrors of migration, took a violent shape, and यहाँ पे Indian government was forced to take actions against the movement which Bhindranwale started, and it took the shape of separatism of Sikh state. Further, there were political dimensions also, which led to the rise of Khalistan movement later on. At the present times, current Khalistan movement is shaped by all of these factors. First among them was the Operation Blue Star. ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार कहां हुआ? गोल्डन टेम्पल में हुआ, अमृतसर में। ये गोल्डन टेम्पल पे हमने अटैक क्यों कराया? ये अटैक कब हुआ? ये इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ। और ये अटैक क्यों किया गया, या ये अटैक था या क्या था, ये असैसिनेशन, इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ वो भी क्यों हुआ, सब का रीजन ऑपरेशन ब्लू स्टार था। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों कराया गया? ये इंडियन आर्मी ने एक ऐसा ऑपरेशन कंडक्ट किया जिसमें हमें ये जो मिलिटेंट सिख ग्रुप था अंडर दी लीडरशिप ऑफ भिंडरावाला को पकड़ने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया गया था। बट अंडरस्टैंड दिस, ऑपरेशन ब्लू स्टार करते टाइम हमारे फोर्सेस, हमारी इंडियन फोर्सेस, हमारी इंडियन आर्मी जब इस टेररिस्ट को पकड़ रही थी, उस टाइम पे इस मिलिटेंट को पकड़ रही थी, who was at that point of time using all the violent forces against the Indian forces, against the Indian government. At that point of time, in order to nab the particular person who was barred or who was protected behind the अकाल तख्त, जो सिख रिलीजन का सबसे पायस पॉइंट था अकाल तख्त, ठीक है, वो अकाल तख्त उस टाइम पे कहीं ना कहीं उसमें यू कैन से वी एंड आवर फोर्सेस डिड नॉट पे दैट मच ऑफ रेस्पेक्ट टू दैट प्लेस विच दैट प्लेस डिजर्व्स, बिकॉज वही है सेंटर पूरे सिखिज्म का इंडिया में, अकाल तख्त। और अकाल तख्त कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय भी हुआ, ठीक है, नॉट डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्ट हुआ। अंडरस्टैंडिंग द इंपैक्ट ऑफ दिस ऑपरेशन ब्लू स्टार, आपको यह समझना होगा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में सिख कम्युनिटी को इतना ज्यादा ठेस पहुंचा कि इसके बाद ही इट वाज ओनली द सिख बॉडीगार्ड ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हु शॉट हर, और उनका असैसिनेशन हुआ। इसके बाद अभी रिसेंट में अगर आप देखो तो पंजाब पॉलिटिक्स, ठीक है, जिसमें अकालीज, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी who are dominant in this region, they are also influential, and somehow because the regional parties are in power, the regional aspirations will have a place at the policy making tables. Therefore what will happen is the policies and the people who are silent supporters of the movement will not be nabbed as you can say ASAP, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया आपको, पंजाब पॉलिटिक्स का एक फैक्टर है, ऑपरेशन ब्लू स्टार का एक फैक्टर है, माइग्रेशन के हॉरर्स है, भिंडरावाला का राइज था, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, दीज वेर द फैक्टर्स विच लेड टू द ग्रोथ ऑफ खालिस्तान मूवमेंट। बट दिस इज नॉट ऑल, वी हैव मोर टू कम। लाइक अभी रिसेंटली हमने पिछले 2-3 महीनों में ये चीज देखी है, 2-3 महीनों में तो आपने हमारी चैनल पे देखा होगा, बट पिछले 10 साल से 15 साल से ये चीज कंटिन्यूअसली चल रही है, दैट इज ग्लोबल डिप्लोमेसी। इंटरनेशनल लेवल पे इफ यू टॉक अबाउट द वेस्टर्न नेशंस हु ऑन द थीम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, व्हाट दे डू इज दे यूजुअली क्रिटिसाइज इंडिया फॉर बीइंग एंटी टू द प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स। द Sikh community in Canada, they constitute around 2% of the total population of Canada. So 2% of the population of Canada
belongs to the Sikh community, which constitutes a large vote bank. And on the basis of this religion, the vote bank politics of this region is largely impacted. ठीक है, one thing, therefore this global diplomacy also gets into challenge, because जो ये countries हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सीज उठाई है, जैसे हरदीप सिंह निज्जर का केस हुआ था, हरदीप सिंह निज्जर के केस में कैनेडियन गवर्नमेंट, जस्टिन ट्रूडो की जो गवर्नमेंट है, उनने साफ ये चीज़ बोली दैट इंडियन डिप्लोमेट्स, इंडियन agents and Indian agencies are responsible for the killing of Hardeep Singh Nijjar. ठीक है, पन्नून जो केस था, पन्नून हरदीप सिंह, और you call him that, it was basically termed as Pannun case. That case also was highlighted, and that case also gained a lot of currency in the international diplomacy, that India basically suppressed the voices of Khalistani activists. So this is one of the factor that this movement is still gaining populace around the world. There are other factors also which lead to the emergence and growth of Khalistan movement, जैसे economic. First, there are economic reasons. Another, there are economic implications of this movement. If we talk about the militancy impact of this region or of this movement in this region, अभी आपने recently देखा था the case of the death of famous singer, ठीक है, some threats given to Bollywood actors by the gangs which are operating all over, some threats which are given to the rappers of this region. Why? Because these you can say syndicates or these groups, they are working in order to gain economic, commercial and monetary benefits. Why? Because this region is facing that crisis. This region is in a continuous state of instability, because यहाँ पे अगर आप देखो militancy का impact, because militancy is damaging the infrastructure in this region, businesses have fled this region, the drug addiction जो आपने देखा होगा उड़ता पंजाब मूवी में, that is just 50% or 10% or 20% of what actually is on the ground. The drug addiction, the agricultural dependency has largely increased post the Green Revolution. The youth is totally unemployed. Diaspora is supporting, but it is supporting the separatism which is happening in this region. The other reasons are border vulnerabilities. आपको पता होगा पंजाब में, पंजाब का स्टेट हमारा वेस्टर्न पूरे का पूरा बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान स्टेट के साथ, जहां से स्मगलिंग, मिलिटेंसी और ड्रग्स बहुत ज़्यादा मात्रा में इस रीजन में आते हैं, बिकॉज इट इज डायरेक्टली शेयरिंग द बॉर्डर विद व्हाट, आपको पता होगा, गोल्डन क्रेसेंट. किसको हम बोलते हैं गोल्डन क्रेसेंट? बेसिकली 3 कंट्रीज है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ 3 कंट्रीज कौन कौन सी है जिनको हम गोल्डन क्रेसेंट बोलते हैं. रिसोर्स डिप्लीशन, बिकॉज इफ यू सी पंजाब गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग free electricity to the farmers who are extracting all the water which they can through their bore wells, due to which the groundwater in this region has been over exploited now. और ग्राउंड वाटर जितना भी यहाँ पे निकाला जा रहा है उसका 80 to 90% of the groundwater is being used in what? Agriculture purposes, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है अब. और यही रीजन कैंसर कैपिटल ऑफ इंडिया बन रहा है. Every second house of this region of Punjab has a cancer patient in their home. That is the kind of situation which they are facing now. ठीक है, अब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं they are acting as small or minuscule factors for the larger movement, that is the Khalistan movement. ठीक है,
अब इस चीज के लीगल एस्पेक्ट समझते हैं। पहला, एंटी टेररिज्म लॉज। लाइक हमारे इंडिया में सबसे पहले एक लॉ था टाडा, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। दीज एक्ट्स आर यूज्ड टू काउंटर द मिलिटेंसी। और ये यूज होते थे कब? 1980s में, 1990s में यूज होते थे ये एक्ट्स। ठीक है। उसके बाद टुडे द एनएसए stands as the strong counter to all of these laws. But we need more specific laws to counter the anti-terrorist activities like we have UAPA. ठीक है। There are extradition problems कि जितने भी इनके एक्टिविस्ट्स है they are basically residing in those countries जहां से हम लोगों को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, एक्स्ट्राडाइट नहीं कर सकते। जैसे ये हरदीप सिंह निज्जर का जो केस है, ही वॉज लिविंग इन कैनेडा ओनली, सो हाउ कम कैन वी एक्स्ट्राडाइट हिम फ्रॉम दैट कंट्री टू दिस कंट्री बेस्ड ऑन द चार्जेस ऑफ एंटी स्टेट एक्टिविटीज, जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है उसको वहां से यहां लाना, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट तो फ्रीली ये चीज अलाउ करती है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और इन्होंने, कनाडा की गवर्नमेंट ने ये तक अलाउ कर दिया कि कनाडा में अभी रिसेंटली प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट्स ने 2 काम किए। पहला उन्होंने काम किया, उन्होंने एक रैली करी। रैली में उन्होंने जो इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था उसको मॉक किया, उसको दोबारा से वहां पे डिपिक्ट किया कि कैसे किया गया था असैसिनेशन, पहली चीज। दूसरा, उन्होंने अभी एक और रैली हो रही थी और हमारा वहां पे एक हिंदू सभा मंदिर था, उस मंदिर में उस टाइम पे रैली में वायलेंस हुआ और वो मंदिर कहीं ना कहीं वो लोग वहां पे भी चले गए और वहां पे जो उस टाइम पे पूजा कर रहे थे लोग, उनको भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। इवन दैट टू इज अलाउड ओवर देयर। देयरफॉर एक्स्ट्राडिशन चैलेंजेस तो यहाँ बहुत ज्यादा है, वहां से हम एक्टिविस्ट्स को ला नहीं सकते, जिस चीज की वजह से एक्टिविज्म जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है और ये मूवमेंट जो है बढ़ रही है। एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस अगर आप देखो इसी मूवमेंट के, ड्यू टू दिस मूवमेंट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल in this region which was both a boon and a curse. Why? Because हमने इस रीजन में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया। ग्रीन रेवोल्यूशन से क्रॉप्स में इंक्रीज हुआ, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, बट प्रॉब्लम ये भी हुई कि सॉइल डिग्रेडेशन हुआ, जिसकी वजह से वाटर टेबल जो है वो डिक्रीज होता गया। देयरफॉर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट कहां पड़ा? सोशल इंपैक्ट, इकोनॉमिक इंपैक्ट, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में फ्रस्ट्रेशन आ गया और यहाँ के लोग अब एक ही रास्ता देखते हैं, क्या? कनाडा। हमें कहाँ जाना है? कनाडा। वहां जाके क्या करना है? गाड़ी चलानी है। बट कहीं ना कहीं यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट ड्यू टू द इकोनॉमिक, एग्रीकल्चरल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस दे आर लिविंग दिस प्लेस एंड दे ट्राई टू फाइंड अनदर मेजर्स, दे ट्राई टू फाइंड द अदर वेज so that they can survive, and in that condition they have to support the movement. Further, there are other reasons like the reasons of urbanization and socio-ecological balance which is continuously in discontent. The environmental issues in this region, हर साल हम पंजाब और हरियाणा को ब्लेम करते हैं किस चीज के ऊपर? कि ये स्टबल बर्निंग करते हैं, और जिस चीज की वजह से क्या होता है? दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ता है। नॉट ओनली दिल्ली बट द यूपी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, जितना भी ये रीजन है, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, इस रीजन में पोल्यूशन का मेन रीजन क्या है? इन दी विंटर्स, स्टबल बर्निंग। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो दिल्ली से निकलता है, एनसीआर रीजन से निकलता है, उसका इंपैक्ट, अर्बनाइजेशन का इंपैक्ट इस रीजन पे बहुत ज्यादा है, फॉरेस्ट लॉस का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। देयरफॉर दिस रीजन is somehow disturbed and the people over there are disturbed, and what they are finding is comfort zone where in this moment. ठीक है, therefore this is one of the reason, the environmental reason for the moment. ठीक है, further there are technological reasons also. टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे अगर आप देखो तो सोशल मीडिया को लार्ज स्केल पे यूज किया जाता है इन एक्टिविस्ट्स के द्वारा जो कनाडा में रह रहे हैं, जो यूके में रह रहे हैं, जो यूएसए में रह रहे हैं। वो लोग अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, और किसको टारगेट बना रहे हैं? इन्हीं लोगों को, द सिख सिंपैथाइजर्स
or the sympathizers of the moment are being particularly individually targeted, so that the concept of the separatism for this Khalistan, the rhetoric behind this, shall be spread across the globe. India has, you can say that it has deployed a lot of sophisticated tools to counter this propaganda, but Indian state respects the fundamental rights, it respects the right to speech, it respects the privacy. Therefore, we cannot deploy these measures to that extent that we can directly interfere into the communications which are there overseas and abroad. We cannot go over there. We do not have that much capacity. We have online echo chambers where digital platforms, they glorify the separatism and the ideology behind this separatism. तो इन सब चीज़ों को हमें कहीं ना कहीं काउंटर करना है, बट वो काउंटर कैसे करेंगे? हम काउंटर कर सकते हैं कि हम पॉजिटिव एस्पेक्ट को फैलाएं, पॉजिटिव अवेयरनेस को फैलाएं, हम ये बताएं कि पंजाब गवर्नमेंट कितना डेवलप कर रही है, पंजाब स्टेट कितना डेवलप कर रहा है. वी कैन नॉट गो टू दैट लेवल, ठीक है, कि हम सर्वेलेंस स्टेट बन जाए, हम चाइना बन जाए, हम नॉर्थ कोरिया बन जाए, वैसा नहीं हो सकता है. देयर आर सोशल फैक्टर्स ऑल्सो, लाइक मैंने अभी बोला डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस भी है. जितने लोग भी पंजाब से बाहर जाते हैं, फॉरेन स्टेट्स में जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यूएसए जाते हैं, यूके जाते हैं, दे हैव दिस इन्फ्लुएंस ऑन द सिक्स हु आर लिविंग इन दिस रीजन, दैट द पीपल हु आर माइग्रेटिंग फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड, क्योंकि माइग्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हर एक घर का बंदा बाहर ही है, बाहर ही काम कर रहा है फॉरेन में, और उनको ये दिख रहा है कि बाहर की लाइफ अच्छी है, यहाँ की लाइफ तो बहुत बुरी है. They have this sub-national identity installed in themselves, which unifies them as Sikhs, but they alienate themselves from the larger country, that is India. The challenges in youth involve कि youth यहाँ का employed नहीं है, drug addiction बहुत ज़्यादा है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यहाँ पे करा जा रहा है, बिकॉज सिख कल्चर को प्रमोट करने के लिए पर्टिकुलरली उसी रिलीजन की वोट बैंक पॉलिटिक्स की जाती है इस रीजन में. व्हाट वी कैन डू एट लास्ट टू स्टॉप द मेनेस ऑफ दिस खालिस्तान मूवमेंट, और टू bring some steps so that we enhance and achieve large scale results in order to stop or pause this movement. What we need to do is, हमने सबसे पहले इस रीजन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमिक रेजिलियंस बढ़ाना है. We need to diversify their agriculture. We need to introduce sustainable practices in the agriculture in this region. Social reforms लेके आने हैं ताकि हम ड्रग एडिक्शन को डी एडिक्शन में बदल दें, हम काउंसलिंग करें, रेडिकलिज्म को ख़त्म करें, हम कल्चरल डिप्लोमेसी यहाँ पे लेके आए. जो भी बाहर हमारा सिख डायस्पोरा है, चाहे वो कनाडा में है, वहाँ की 2% पॉपुलेशन है, ऑस्ट्रेलिया में है, वो यूएसए में है, वो यूके में है, वो किसी भी यूरोपियन वर्ल्ड में है, हम वो सारे रीजन को, इस सारी कल्चरल डिप्लोमेसी को इकट्ठा करें और सिख आइडेंटिटी को जोड़े. कहाँ से? द ओरिजिन, द प्लेस, द ओरिजिन ऑफ द सिखिज्म, दैट इज पंजाब, वहाँ से जोड़े. देन ओनली वी कैन सी दैट दिस रीजन बिलोंग्स टू इंडिया. फर्दर हमें बॉर्डर सिक्योरिटी को एनहांस करना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा. विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन हेयर. इफ यू नीड PPT of this session, you can join our Telegram channel, which is in the description below. Further, if you want to connect to me and have an appointment with me, you can contact on the numbers which are given in the description only, and you will be directly assigned a specific date and a time so that you can interact with me and have your mentorship session and your strategy right for the upcoming UPSC 2025. Thank you. All the best. Jai Hind.